Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of ninth class. I am hopeful that all of you are fine and healthy at your homes. Today I am going to teach you unit number 8, stopping by woods on a snowy evening. Before that we will recite dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma. Ameen. The name of the unit, stopping by woods on a snowy evening. ठीक है? This is the poem composed by Robert Frost. He was a famous American poet, and he was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times. ठीक है? His poetry focused on themes of nature, in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time. तो जो मेन इसकी पोएम्स हैं कुछ फेमस, उनमें बर्चेस, आफ्टर एप्पल पिकिंग, मेंडिंग वॉल, डेजर्ट प्लेसेस, होम बरियल एंड द रोड नॉट टेकन, इसकी कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ फेमस पोएम्स हैं, और जिनमें से एक ये जो पोएम है आपकी बुक में, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. नाउ लुक एट द टाइटल ऑफ योर पोएम इन एट योर बुक, पेज नंबर 81. ठीक है? पेज 81 के ऊपर जो है वो एक पिक्चर है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा सीन, ब्यूटीफुल सीन ऑफ वुड्स फुल ऑफ स्नो. ठीक है? एक सीन ऑफ फॉरेस्ट फुल ऑफ स्नो. Does this title, I want to ask from you, that does this title reflect the theme of the poem? Yes. You don't know about the poem, but I am telling you that yes, the title of the poem clearly reflects the theme of the poem, because in the whole poem the poet creates the images, very beautiful imagery by his using very beautiful language, figure of speech. He creates the image of snow and the darkest evening. And the second question from the pre-reading, I want to ask from you that what makes nature poems appealing to you? नेचर पोएम्स में से क्या क्यों अपील करती हैं, हमें क्यों अट्रैक्ट करती हैं? आपके जो बुक है इसमें 2 ही पोएम्स हैं. वन इज डैफोडिल्स composed by William Wordsworth, that is also the theme of nature, beauty of nature, और यहाँ पर भी as it is ही है. तो बाकी इतने सारे लेसन्स के बीच में 2 पोएम्स और ब्यूटी ऑफ नेचर, तो ज़रूर जो है मेरा आंसर तो ये होगा कि नेचर पोएम्स जो हैं brings us closer to nature and make us feel beauty, love and kindness of nature. ठीक है? That is why these poems appeal to me and as well as all of you. ठीक है? ये poems जो है हमें क्यों अपील करती हैं? Because the beauty presents in these poems. ठीक है? Now come on page number 82. I will start stanza number 1. First of all, I recite the stanza. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Very beautiful lines. And these lines जो हैं इस poem की, ये जो very first lines हैं, there are a lot of things. ठीक है? इसके अंदर जो figure of speech है वो भी देखेंगे हम, साथ साथ explanation देखेंगे कि poet की feeling क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो, और सारे जो techniques उसने use किए हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है? जो इसमें idea है, जो explanation है वो हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है? तो क्या है? whose woods these are, I think I know. The poet has stopped near the snowy woods. ठीक है? सीन क्या है? फर्स्ट जो सीन है वो मैं आपको शो कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि सीन क्या है, कि the poet has stopped near the snowy woods. ठीक है? snowy woods के पास जो है वो पोएट रुका है. His first wonder, he is feeling amazing, that's why he is asking
द फर्स्ट लाइन इज शोइंग दैट क्वेश्चन. जैसे आप किसी चीज की ब्यूटी से, किसी बहुत खूबसूरत घर देखें, कोई जगह देखें, तो एकदम हमारे मुंह से खुद ही अकेले अगर हम हों तो सवाल करते हैं वाह माशाल्लाह ये किसका है, और फिर खुद ही आसपास कोई नहीं होगा तो खुद ही फिर अपने जहन में कोई भी आने वाला जवाब जो है वो हम दे देते हैं. सेम इज द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड वंडर शोज द फर्स्ट लाइन जो है उसमें पोइट की जो फीलिंग्स है वो शो करिए. whose woods these are, this is a question, but he is by himself giving the answer. In wonder he is saying that whose woods these are, ये किसके हैं woods forest, I think I know. and again उसी टोन में जो है वो एकदम ही साथ ही सेम ब्रीथ में उसी सांस में he tells that he thinks he does know who owns them, कि वो कहता है कि मुझे पता है शायद कि ये कौन है, कौन है इनका मालिक. और फिर नेक्स्ट में जो है कहते हैं ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. ठीक है, और बल्कि इसी नेक्स्ट लाइन में हिज हाउस इज इन द विलेज. दो क्या कह रहा है, द ओनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन द हाउस इन द विलेज, के जो ओनर ऑफ द वुड्स है उसका जो वुड्स का जो ओनर है उसका हाउस कहाँ पे है, इसी विलेज में. और फिर साथ ही जो है वो इस चीज को उसको ये चीज खुद ही मतलब पोइट जो है वो ये फील कर रहा है कि उसका घर तो इधर है, लेकिन ये जो इसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है कि वो उसको पता नहीं है क्या, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, कि वो तो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ. और ये कैसी फीलिंग है जो कि मजीद इस ख्वाहिश को, इस डिजायर को, उसकी फीलिंग को कि ही वांट्स टू स्टे हेयर. द पोएट वांट्स टू स्टे हेयर बिकॉज ही नोज दैट कि ओनर ऑफ द वुड्स जो है वो तो यहीं पे है, उसका घर यहीं पे, लेकिन इस सीजन में और इस शदीद जो ये स्नोई टाइम है इसमें वो आकर मुझे देखेगा नहीं. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि वो उसके मतलब उसकी जो डिजायर है वो उसके खुद ही अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे रहा है. और जो पोएम है वो असल में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, किसमें, बिटवीन द जो इसकी ब्यूटी ऑफ नेचर और हमारे जो डेली अफेयर्स हैं लाइफ के उनके. और द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी is very inviting here. The poet is very much invited by the fantasy of the nature, but one must maintain the balance between the world of fantasy and reality. ये आपको next stanzas में इसके बारे में पता चलेगा. ठीक है, और इसी में क्या है कि the snow falling in the woods and finding that the owner of the woods is absent, he lingers his stay at this his horse is confused. वो इनके नेक्स्ट stanza में आएगा. तो यहाँ पे इसकी पोएम की जो टेक्निकल जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी वो आप अंडरलाइन करें वर्ड्स whose woods. whose woods whose woods जो है वो क्या चीज शो कर रहे हैं, टेक्निक ऑफ एलिट्रेशन. ठीक है, आपने जो पहले पोइम मेरे साथ पढ़ी है उसमें वो था डैफोडिल्स, और उसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच which the poets mostly use in order to beautify their poems. ठीक है, अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये है एलिट्रेशन, और साइड बॉक्स क्वेश्चन में आपसे इसके बारे में पूछा भी गया है. दैट्स वाई ये इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन होगी स्टेंजा की उसमें आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बेशक आपने यूनिट 5 में पढ़ा हुआ है लेकिन मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है व्हाट इज एलिट्रेशन. पहले आपको पता होना चाहिए एलिट्रेशन क्या है. एलिट्रेशन रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं ये भी पता होना चाहिए आपको. हमारे जो A to Z लेटर्स हैं उनमें हमारे पास 5 जो हैं वो हमारे वॉवल्स होते हैं, A E I O U. ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और उनसे जो भी साउंड स्टार्ट होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. और इनमें इन वर्ड्स में पोएट्री में क्या होता है कि इन वर्ड्स विच आर यूज्ड क्लोजली टुगेदर इन द पोएम, जब ये किसी पोएम में साथ साथ जुड़े हुए आपको यूज किए जाए नजर आए आपको, बहुत बिल्कुल ऐसे हुज वुड्स की तरह भी हो सकते हैं, और आगे एक और एग्जांपल नजर आएगी उसमें थोड़ा सा बीच में कोई और वर्ड्स भी आ सकते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हुज वुड्स. ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में देखिए सेकंड एग्जांपल, हिज हाउस. द एलिट्रेशन ऑफ एच एच, ऊपर क्या है एलिट्रेशन ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू. ठीक है,
in the village. दो फिर next है he will not see me stopping here, alliteration of ss, ठीक है. These are 3 examples of alliteration in this stanza. और फिर इसके अलावा आपसे जो नेक्स्ट पूछा जाएगा वो है इमेजरी का. इमेजरी क्या होती है? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ये. और अभी नेक्स्ट टेंजा में मैं मजीद आपको एग्जांपल्स बताऊंगी इमेजरी की, और इमेजरी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन. अब इसकी राइमिंग स्कीम आप देख लीजिए, ये भी आपने पहले टेक्निक पढ़ी हुई है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हो तो वो भी देख लें कि क्या है. नो एंड दो, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स है ना, सेम इनकी एंडिंग साउंड सेम है. नो, दो एंड स्नो, दीज 3 वर्ड्स आर सेम राइमिंग वर्ड्स. और जब जब हम टैग करेंगे, राइमिंग स्कीम आपसे पूछी जाएगी स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन में, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. तो राइमिंग वर्ड्स तो ये हो गए, ठीक है, नो, दो एंड स्नो. और राइमिंग स्कीम क्या होगी, इसको हम टैग करते हैं, नो को ए और फिर दो को ए, ठीक है. ए आ गया हेयर के साथ, ये बिल्कुल डिफरेंट एक साउंड है, तो इसके साथ हम लगा देंगे बी, ठीक है. तो ये डिफरेंट है तो बी हो गया, और स्नो अगेन ए, इसको हम इस तरह टैग करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी ए, ठीक है. राइमिंग स्कीम अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम जब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो अभी उस वक्त मैं आपको करवा दूंगी. बुक पे आप जो है वो साइड पे लिख सकते हैं, नो के साथ आप ए लिख लें, दो के साथ ए लिख लें, हेयर के साथ बी लिख लें, और स्नो के साथ अगेन ए लिख लें. तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए, ठीक है. नाउ कम ऑन सेकंड स्टेंजा. Very beautiful stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Very beautiful lines. और जो very first line जो है इसकी वो क्या शो करी है, my little horse, the possession of the poet, the love of the poet with his horse, ठीक है. कि जैसे आप अपनी किसी चीज को कहते हैं मेरा प्यारा हॉर्स जो है, और वो लिटिल क्यों कह रहा है कि बिकॉज हिज हॉर्स इज वेरी यंग, अभी जैसे बिल्कुल यंग हॉर्स है, तो उसके ये भी एक पोइट की वेरी गुड क्वालिटी यहाँ पे हमें शो हो रही है कि आपके साथ कोई सफर कर रहा हो, आपका कंपेनियन हो, जो भी साथी हो, तो कुछ लोग जो हैं वो भी इतने केयरलेस होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमारे कंपेनियन को क्या चीज़ पसंद है खाने में पीने में, बस वो हर जगह पे अपनी मर्जी करते हुए आगे आगे चलते जाते हैं, सफर तय करते जाते हैं, और फिर वो मतलब उनके साथ जो गुजरी हुई यादें जो होती हैं वो कैसी होती हैं. लेकिन though his companion is an animal, even then he is very much caring about his horse, and he is saying that my little horse must think it queer. Underline the word queer. क्वेयर मीन स्ट्रेंज, अजीब. उसकी फीलिंग्स के बारे में वो उसको फौरन पता चल गया हॉर्स राइडर को, पोइट को. क्या कह रहा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो ये प्यारा घोड़ा है वो भी ये सोच रहा है कि दैट इज वेरी स्ट्रेंज. क्या चीज स्ट्रेंज लग रही है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है. यू नो व्हाट इज फार्म हाउस, यस यू नो. फार्म हाउस क्या होती है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पहले जारी बात है ये क्लासिकल एज की पोइम है जो कि 18th सेंचुरी की, तो उस वक्त क्या था कि जब हॉर्सेस के ऊपर सफर किया जाता था तो वहां पर जब कहीं स्टे करना हो तो जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए कोई इन सराय और गेस्ट हाउस चाहिए होते हैं, तो इसी तरह उनके जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी, हॉर्स के लिए भी स्टेबल चाहिए होता है. तो फार्म हाउस जो है वो मस्ट होना चाहिए जहाँ पर आप स्टे करना चाहते हैं, बिकॉज इतनी लंबी राइड के बाद उस बेचारे हॉर्स को भी पानी खाना चारा सब कुछ चाहिए होगा. तो बाहर तो स्नो है, कोई ग्रास या ऐसी कोई चीज नेचर की तरफ से नहीं उसके लिए. तो फिर वो कह रहा है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर तो कोई फार्म हाउस नहीं है, तो मेरा हॉर्स भी ये सोच रहा है कि आई शुड नॉट स्टॉप हेयर. और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द सीन, वेरी ब्यूटीफुल सीन. और ये क्या है, इमेजरी. ये क्या टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पर, पोइट क्या चीज यूज कर रहा है, इमेजरी यूज कर रहा है, विजुअल इमेजरी यूज कर रहा है. बिटवीन द वुड्स, इन द सेंटर ऑफ द वुड्स, एंड फ्रोजन लेक, द लेक इज आल्सो फ्रोजन, देयर इज टू मच स्नो अराउंड आउटसाइड, के लेक जो है वो भी फ्रोजन है, द हॉर्स कैन नॉट ड्रिंक द वाटर हेयर, ठीक है. एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द सुपरलेटिव डिग्री, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, के ये जो साल की ये जो शाम है ये इंतहाई शदीद ठंड है, ठीक है.
ये जो है ये भी आपको विजुअल इमेजरी क्रिएट करके दे रहे हैं पोइट के आपके आसपास बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बिकॉज ये जो टाइम है स्नो फॉलिंग का ये बहुत जल्दी शाम को ही जो है वो बहुत ज़्यादा इस सीजन में डार्कनेस हो जाती है, और ये विजुअल इमेजरी यहाँ पर पोइट जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये टेक्निक्स आपने मस्ट याद करनी है क्योंकि इन स्टेंजाज में से यही आपसे पूछा जाएगा। और अभी इसमें जो है वो आप एग्जांपल्स देख लीजिए। इमेजरी, विजुअल इमेजरी यूज हुई है। ठीक है, क्वेयर का मीनिंग है स्ट्रेंज, और राइमिंग स्कीम अगेन सेम राइमिंग स्कीम है, क्वेयर एंड नियर ए एंड ईयर ए। ठीक है, सेंटर में लेक जो है वो एक डिफरेंट आ गया तो उसको आप बी टैग कर देंगे तो ए बी ए, द सेम राइमिंग स्कीम एज इन द स्टेंजा नंबर 1, सेम इज द राइमिंग स्कीम इन स्टेंजा नंबर 2। और इमेजरी जो है वो इसमें टेक्निक जो यूज हुई है उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि इमेजरी क्या है। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस। ठीक है, जो हमारे जहन में जो अल्फाज एक इमेज क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ द रीडर through the visual sense as well as the sense of touch, smell, टेस्ट और साउंड। ठीक है, कुछ और टेक्निक्स अगले स्टेंजाज में यूज होंगी, मतलब होंगी वो इमेजरी ही, लेकिन इमेजरी को किस किस तरीके से जो है वो पोइट करता है। विजुअल जो है वो हमारी आईज के आगे इमेज ऐसा क्रिएट किया जाता है वर्ड्स के जरिए, और कुछ साउंड्स क्रिएट करके जो है वो सेंस ऑफ टच, और इसी तरह और भी इसकी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल जो है ये हमारे सामने विजुअल इमेजरी है। ऑडिटरी इमेजरी जो है वो स्टेंजा नंबर 3 में यूज हुई है, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू स्टेंजा नंबर 1 और स्टेंजा नंबर 2। आई एम होपफुल दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। और स्टेंजा नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि द पोएट इज नॉट अलोन। ठीक है, ही हैज अ हॉर्स एंड हिज हॉर्स इज वेरी लिटिल and his little horse spend a lot of time together with him, and the poet horse finds it strange to stop at a place where there is no farmhouse nearby, और इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखें, जब एक्सप्लेनेशन या पैराफ्रेजिंग करेंगे तो आपको इजी लगेगा। एंड वाइल द स्नो एंड डार्क इवनिंग एंड फ्रोजन लेक प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल सीन, the poet and his horse are feeling cold in the between the woods and the frozen lake. The poet wants to enjoy the beauty of nature. यहाँ पर इन दो स्टेंजाज में पोइट को जो डिजायर उसके ऊपर आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, he wants to enjoy the beauty of nature here। उसके लिए ये डार्केस्ट इवनिंग और उसके लिए ये स्नो जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, एंड ही वांट्स टू स्टे हियर, और देयरफॉर ही स्टॉप्स देयर। बट सीन जो है वो नेक्स्ट 2 स्टेंजाज में चेंज हो जाएगा, और हॉर्स की जो मौजूदगी है वो हमारा इसके अगर प्रोफाउंड, इसका जो डीप मीनिंग है ना पोइम का, वो ये क्या है कि ये जो वुड्स हैं और ब्यूटी है ये हमारी आसपास जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं। ह्यूमन बीइंग जब इस कायनात में आता है तो यहाँ पर हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी खूबसूरत ख्वाहिशें और ब्यूटीज और ये चीजें जो है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन एक अक्लमंद होने के नाते एक अच्छा सेंसिबल मैन जो है वो क्या करता है, इनको बैलेंस करता है। तो जो हॉर्स है यहाँ पर जो वो उसकी स्ट्रेंज फीलिंग है, ये हमारा प्रिकिंग कॉन्शियस है, हमारा ज़मीर जो है वो घंटी बजाता है इस किस्म की कि हम जाग जाते हैं और हमें हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके अलावा जो आसपास डेंजर्स हैं वो हमें बताता है कि यहाँ पर ऐसी ख्वाहिश पर अमल करने से इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये इसके प्रोफाउंड मीनिंग्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और इंशाल्लाह इन द थर्ड स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा यू विल एंजॉय मोर, and the more discussion will be done in video classroom. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.